नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी। उदयपुर में आज से नवसंकल्प चिंतन शिविर का आगाज हो चुका है और अभी उदयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अलका लांबा। क्या कुछ कह रही हैं आपको सुनाते हैं। उम्मीद लगाकर देख रहा है, हम उन्हें विश्वास दिलाना चाहते हैं। हम यहाँ उनके लिए बैठे हैं। हम देश के करोड़ों युवाओं के हक को, अधिकार को दिलाने के लिए बैठे हैं और हम इस चिंतन के अंत में एक समाधान लेकर जरूर बाहर निकलेंगे और वही एक उम्मीद की किरण देश के करोड़ों युवाओं के लिए साबित होगी। धन्यवाद। A very good evening to all of you. I am representing this committee and I will be speaking on the education aspect. We live in challenging times and Indian National Congress believes that education decides the future of the youth and through them the future of our nation. So our country's future depends on how we prepare our youth to face the future challenges. Unfortunately, the children of our country are now entering adulthood where the climate of uncertainty exists. We have reached a point where we have forced to think of few questions. Do we need an India where education helps youth to be constructive or destructive? Do we need an India where education shapes the youth to be tolerant and secular or intolerant and in which communal venom gets injected? Do we want an India where education prompts the youth to work towards the dream Mahatma Gandhi dreamt of or that Nathuram Godse killed for? Do we want an India where scientific temper is the basis of education, respecting tradition, what Nehru envisaged, or which has ignorance of science as the basis of education? Do we want an India where universities are turned into places of where communal harmony is spread, or to a place which ignites hate speeches and communal rights, and how this communal disharmony exists? In Chintan Shivir, we are discussing, deliberating on all these issues, and Indian National Congress wants an education system where the youth is self-reliant and how they can be constructive and how they are equipped to face the future challenges. We want an education system where the youth will be faced with scientific temper and also where the most important thing of facilitating India to remain as a tolerant and a place of tranquility. All these are what we want to be reflected in national education policy. But unfortunately, the national education policy of NDA government is run with a political agenda, with a communalizing agenda. For example, issues like the text history being distorted and also communalizing in the textbook elements which were never earlier. Congress party during the time of Sri Rajiv Gandhi, national education policy, the new policy of that time was made with absolutely no political agenda. But here we see everything is made with political agenda. Currently, we find the dropout rate after elementary education is very high in India, as also the enrollment date of the students who are enrolling for education, that is also which is reduced to a very low. So we consider all these are issues which needs to be addressed, and also two important aspects which we would like to discuss in the Chintan Shivir committee is one, regarding the UPA government's right to education, wherein the children till the age of 14 years were provided compulsory education. So that how we can take it to the next level, that is by ensuring the education till in the higher education aspect also. Secondly, another thing which we would like to address is on the demographic dividend.
because our country, by it's 2026, we will be reaching where the 65% of the population would be within the age of 15 to 64 years. So we would like to address it from that point of view, where this country should be one where there is skilled population which will face the needs of global standards. So what UPA government had started a skill mission program which initiated well, but right now the NDA government's Skill India program is a mere PR exercise. So we will be deliberating on how we can include more avenues to make skill programs more accessible and global standards can be met. So I would like to conclude by saying this Chintan Shivir will be a forum where the education which develops the future of our country, the issues right now being faced, how that can be addressed, and how Indian National Congress thinking can be developed to meet the needs of Congress, and also how we can be an eye-opener to the existing government. Thank you. Thank you, Jai. Now I will request Karishma Thakur ji. Karishma, open करें. मेरा सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार है. मैं करिश्मा ठाकुर उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा हूं और हमारा ये मानना है कि भाजपा के शासनकाल में नौजवानों के सपनों के साथ खिलवाड़ हो रहा है. हम सब ये समझते हैं कि जिस तरह से आज पेपर लीक किए जा रहे हैं, एग्जामिनेशंस लीक किए जा रहे हैं, परीक्षाएं लीक की जा रही हैं, कहीं ना कहीं नौजवानों के सपनों को तोड़ा जा रहा है. भारत का वो युवा जो अपने सपनों को लेकर मेहनत करता है, कोचिंग करता है, फिजिकल ट्रेनिंग करता है, उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति जो भी हो, उसके माता पिता ये प्रयास करते हैं कि कैसे भी अपने बच्चे को हम पढ़ाएं, उसको पढ़ाकर उसको आगे बढ़ाएं. आप सोचिए, जब एक नौजवान परीक्षा में उत्तीर्ण होने जाता है तो उसके पीछे उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी कमजोर रही हो, उसके पास जेब में पैसा हो ना हो, वो अपना किराया लगाकर ट्रेन में सफर करता है. ट्रेन में सफर करने के बाद रातों रात सड़कों पर सोकर, फुटपाथ पे सोकर वो इंतजार करता है कि सुबह होगी और मैं अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होऊंगा, मैं परीक्षा दूंगा और उसको पास करके मुझे रोजगार मिलेगा. लेकिन वो देश का युवा जब परीक्षा देने जाता है, उसे पता चलता है कि पेपर तो लीक हो गया, परीक्षा तो निरस्त हो गई. उसके बाद उसके सपनों पर, उसके परिवार के सपनों पर, उसकी मानसिक स्थिति का जो हाल होता है उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते. मैं आपको ये बताना चाहती हूं कि पिछले 2 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर 17 परीक्षाएं रद्द कर दी गई, कैंसिल कर दी गई. पहले तो सरकारी नौकरी नहीं, फिर भी कुछ मौका आए तो पेपर लीक हो जाते हैं, और अगर परीक्षा दे दी तो सालों साल लोग इंतजार करते हैं कि हमारा रिजल्ट कब घोषित होगा. बड़े दुख की बात है कि रेलवे ग्रुप डी के 1.25 करोड़ नौजवान 2 साल से अपने परिणामों का इंतजार कर रहे हैं कि हमारी परीक्षा का परिणाम आए तो हमें रोजगार मिल सके. और ये पेपर लीक कौन करता है? ये पेपर लीक करते हैं अधिकारी, शासन प्रशासन के लोग. चंद पैसों के लिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है. जब भी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक की कोई समस्या आई, युवाओं से संबंधित, बेरोजगारी से संबंधित कोई समस्या आई, तो आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने उनकी आवाज को उठाया. और कांग्रेस पार्टी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है कि हमारे जहां पर भी सरकारें हैं, हम जहां पर भी शासन कर रही हैं, वहां पर ऐसी समस्याएं ना हो, और यदि होती हैं तो जो भी लोग पेपर लीक मामले में लिप्त हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद करिश्मा. आपके सवाल हो तो एक एक करके इंगित करें, उनका जवाब देने के लिए. अदिति जी. जी बिल्कुल, हमारी जो पार्टी है
युवाओं के साथ अगर कोई भी अत्याचार है तो हम लोग को पूर्णतः इस बात पर विश्वास है कि अशोक गहलोत जी की सरकार, जो लोग भी इसमें लिप्त होंगे, अपराधी होंगे, तो उन पर जरूर कार्रवाई की जाएगी। जी सिद्धार्थ, युवा कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल अवश्य रूप से इन तमाम मुद्दों के ऊपर चिंतन हो भी रहा है और हमने कहा है कि चाहे वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ युवा हो, चाहे वो बाहर का युवा हो, तमाम चीजों के ऊपर चिंतन हो रहा है। बिल्कुल ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज आपने कही है कि युवा हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ रहा है और क्यों वोट शेयर कम हुआ है, उसके ऊपर भी सारी चर्चा होगी। सिद्धार्थ भाई, एक मिनट मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि युवाओं के सपने क्या हैं, युवाओं के मुद्दे क्या हैं, युवाओं की एस्पिरेशंस क्या हैं, महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, इस पर चिंतन होगा और उन्हें हम किस तरह से अपनी कार्यप्रणाली का हिस्सा बना सकें, हम अपने मैनिफेस्टो का प्रदेश में या देश में हिस्सा बना सकें और उसको क्रियान्वित कर सकें। तो हम चाहते हैं कि युवा ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़े, और युवा जुड़ेंगे भी तब जब हम सिर्फ राजनीतिक तरह से उन्हें जोड़ने की कोशिश न करें। मैंने तमाम और एवेन्यूज भी गिनवाए। फिर हमने ये भी आपको बताया कि शिक्षा में हम किस तरीके से बेहतरी कर सकते हैं। ये भी बताया गया कि राइट टू एजुकेशन है तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट भी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि एक अधिकार नौजवानों को मिले। तो इन सब चीज़ों का अगर क्रियान्वयन होगा तो युवा हमारे साथ और ज़्यादा जुड़ेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। जी माइक ले लीजिए, आप सुन नहीं रहा। Hello, can you hear me, ma'am? आपसे I'm Shobhadra Chatterjee from Hindustan Times. My question is related to the what you said about right to employment. Now, Manrega is a form of right to employment for the rural sector. Could you like to elaborate on what you mean and what is the scope of this proposed right to employment? You will have to answer that. Sorry. You talked about right to employment. हाँ, पूछिए। क्या राइट टू जॉब को आप दो स्टेटों में लाके करोगे? देखिए, ये चर्चा में आया है। आप लीगल गारंटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल लीगल ही है। आरटीआई, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, सूचना का अधिकार, तो जो भी बात हो रही है वो लीगल हो रही है कि अगले 2 साल तक कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर एक मजबूत भूमिका निभाते हुए अब की सरकार को कैसे मजबूर कर सकती है, वरना 2024 एक बड़े बदलाव की तरफ देश का युवा जो देख रहा है, और उस बदलाव में कांग्रेस अपने आप को इन सब लीगलिटीज के तौर पर जो किया है, आगे भी राइट टू एम्प्लॉयमेंट को कैसे कर सकती है। और आपने मनरेगा की बात किया, मनरेगा जो है नेशनल रूरल है, लेकिन हमारी सरकारों ने उसे अर्बन में भी करने की शुरुआत कर दी है। राजस्थान तो अब जो देखा जा रहा है, वो एक पूरे रूरल या अर्बन मिलाकर देखा जा रहा है। यस, हेलो। देखिए, हमारी जहां दोनों सरकारें हैं, हमारी अपनी सरकारें, सहयोगियों की मैं अभी बात नहीं कर रही, लेकिन हाँ, ये बार बार चर्चा में आया कि हमारी राजस्थान और छत्तीसगढ़ के दोनों मुख्यमंत्री और 2 जगह हमारी सरकार है, चिंतन शिविर में उपस्थित है। वहां पर हम जो बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम वहां लागू करके अपने एक उदाहरण दूसरे भाजपा शासित राज्य या गैर कांग्रेस शासित राज्यों में हम करा पाए। I would like. सॉरी, माफी चाहूंगी, उनके बाद I would like to know what the Congress will do to encourage the youth to join the party. That is one of the problems facing the party, I feel. So what is the Congress going to देखिए, मैं do फिर कह रहा हूं, about yes, the youngsters joining the party? There should be young faces there, because once the older generation goes, there should be a next batch of leaders. So what is the party going to do for that? तो मेरे And को can you please respond in English? Sorry, because it makes it very
You can mix it, but so that we understand. What I personally feel, this I can only tell after the discussion only. But today only I don't announce anything that how we can do that. But seriously, we are thinking on that and discussion is going on. And after the on 13th, 14th, last 15th, we will tell you that what is the अल्टीमेटली हम क्या उसमें निकल के आया है और क्या होगा और कैसे देश का युवा कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ेगा। मेरा सवाल है जी, मेरा सवाल ये है, सुनिए, मेरा सवाल है कि आज नवसंकल्प शिविर के शुरू होने के 2-3 दिन पहले राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन, राजस्थान में के पूर्व उप मुख्यमंत्री, हाँ, डिप्टी सीएम, उन्होंने ये कह दिया कि 40% जो है रिप्रेजेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप पे युवकों को मिलने वाला है, कांग्रेस की तस्वीर बदलने वाली है, सूरत बदलने वाली है। तो ये शिविर के पहले जो इस तरह के अनाउंसमेंट हुए हैं, इट हैज कम फ्रॉम ए पर्सन जो सबसे महत्वाकांक्षी हुआ आज देश का सबसे जो है वो सचिन पायलट। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी व्यक्तिगत राय जो है बाद में दे सकते हैं, प्रश्न पूछे। मेरे ख्याल से मेरा प्रश्न यही था कि वो 40% का है उसको सुबह की जो ब्रीफिंग, हम तो डिस्कशन में जो निकल के आ रहा है 50% की बात कर रहे हैं। दूसरी बात जो सचिन पायलट जी ने कहा, उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। हम कह रहे हैं नहीं, हम कह रहे हैं कि ये संकल्प जो चिंतन शिविर हो रहा है, ये 3 दिन की डिस्कशन के बाद आपको बता दिया जाएगा। अगर देश का युवा ये चाहता होगा कि 40% ऐसा होना चाहिए तो ऐसा होगा। सुबह आंसर दिया इस सवाल का, वही मैं कह रहा हूं कि आप इस सवाल का उत्तर सवेरे के सत्र में दिया गया है आपको। तमाम बेरोजगारी और युवाओं की पीड़ा के बावजूद बीजेपी को इसका खामियाजा क्यों नहीं भुगतना पड़ रहा, इसको बदलने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? एक और सवाल कि युवाओं में फैलाई गई जो सांप्रदायिक नफरत है उसको काउंटर करने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठाएगी? शुक्रिया। मैं क्वीन से आदित्य मेनन। जी, मैं आपका और आपका दोनों का आई विल ट्राई टू आंसर बोथ द क्वेश्चंस। यू सी, I think the challenge for the Congress party right now is to provide a compelling vision of India which is different from the BJP and also of the regional parties. A vision which has foremost involvement of the youth of this country, a vision which reflects the aspirations of the youth of this country, a vision which is not just political, a vision which empowers the youth to come out from the periphery or the margins to the forefront of not just electoral power but also power in different walks and fields of life. It is a big challenge, and I feel that every challenge comes with an inherent opportunity. Okay, so at this point in time, as the convener of this committee has said, that we are going to deliberate, we are going to have discussions. These are the ideas which we have floated for discussion, and as we will get more and more suggestions, we will be able to consolidate this idea and come up with a framework, an action plan, a vision which I am 100% sure is going to get the youth of this country to be more sympathetic towards the Congress party, to lean more towards the Congress party, क्योंकि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि कोई भी माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों के एक हाथ में डिग्री हो और दूसरे हाथ में पत्थर हो या लाठी हो या तलवार हो। वो चाहते हैं कि एक हाथ में डिग्री हो और दूसरे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर हो, और वही कांग्रेस पार्टी इंश्योर करना चाहती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस बात से हम गुरेज नहीं कर सकते, हम झुठला नहीं सकते कि 2019 के चुनाव में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। हम इस बात से भी गुरेज नहीं कर सकते कि सांप्रदायिकता का माहौल है। एक भारतीय को दूसरे भारतीय से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, खान पान के नाम पर लड़ाने की कोशिश की जा रही है, पर वही तो चुनौती है। हम उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। हो सकता है कुछ समय के लिए देश के नौजवानों को इस तरह से दिखाया गया कि वो एक संकीर्ण सोच, एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड फ्रेमवर्क में सोचे। हम उसे तोड़ेंगे और हम नौजवानों से कहेंगे कि आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का काम हम करेंगे।
क्योंकि नौजवानों को सस्ता नहीं मिल रहा है पेट्रोल और डीजल बाइक में भरने के लिए, उनके घर के लिए सिलेंडर, गैस और ये सारी चीजें सस्ती नहीं हो रही हैं, दूध, खाने पीने का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं उदयपुर से। आपको बता दें कि उदयपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।